जनता Abhishek, are you there Abhishek? Mr. Karthikeya, please introduce. Yeah, hi, good evening, everyone. So, I am Karthikeya Mathur and I am based in Jodhpur. I'm pursuing my MBA from Jodhpur itself, and I've also been assisting my father in our family business. Thank you. Okay, thank you. Neeraj Sharma. Yeah. Hi everyone, Neeraj this side. I'm based out of Gurgaon, working in data related technologies. Okay, thank you. Sejal Jain. Connecting to audio. Yes, Sejal, please introduce yourself. Can you hear me now? Okay, maybe you can come to it later. Saurabh Dayal. Hi everyone, I run a company called Clear Deco, which is India's leading budget eyewear brand. We have 59 outlets across India. Thank you. Thank you. Abhishek, are you back? Sejal, are you there now? Okay, never mind. We'll move on. Okay, so today's topic is the barter deals. So we used to have this barter system long back when people used to do one thing for the other person and the other person would do something for that person. It's kind of exchange of objects or exchange of services. Okay, so the reason why I thought this topic is very relevant in the COVID time, because most people are running out of cash, but most people have the energy to exchange, because services to exchange and things to exchange probably, except the cash part. People probably have things to exchange. So why can't we kind of use this barter deal, uh, and maybe standardize this with that money thing कि हाँ चलो ये 100 रुपए का object है, so you need to give me an equivalent object or service of 100 rupees, so that money can still standardize, but still you don't need to exchange cash between the two parties, ऐसा कुछ. So let's just hear a quick feedback or understanding of barter system. So yeah, Sunil, what's your comment regarding this barter system? Like, would you do something here for barter? Hello. Hello. Yes, Yes, Abhishek, yes. yeah, actually, well, very honestly, that is why I just entered the discussion today, because this is very interesting for me, because we have never dealt in barter. So probably I would be more of it could be more of a learning for me today, you know. I would want really want to know how barter happens, and because of course, as you told, people are running out of cash, you know. So I really want to understand. So I have nothing to speak right now. I'm so sorry for that. Okay, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. Like about I'm it. running a preschool. Let's say आपके बच्चे हैं या आपके जो भी cousins हैं या जो भी हैं. So I just issue you 1,000 rupee or 1,500 rupee voucher and say okay ये 1,500 का PR कर दो मेरे लिए. ठीक है, मैं आपके बच्चे को पढ़ा देता हूँ और आप मेरा ये उसके equivalent PR कर दो. तो समझ या इसमें आपका क्या thought होगा पहला? Like let's say very first thought. What will you think? देखिए मेरा थॉट ये है कि देखिए इफ इट इज वैल्यू फॉर अगर इफ समथिंग दैट आई गेट यू नो, अगर मुझे जो बाटर में जो वो काइंड मिल रहा है, जो मुझे कोई भी सर्विस या वैल्यू मिल रहा है, इफ इट इज ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग वेरी worthy, then definitely why not? Yeah, of course. So but even if it's not so worthy, what's the harm? It's not the picture so worthy. एकदम मेरे लिए अगर मैं if I see that it's of no use to me, then so yes, exactly. तो इस पे आप सोचिए थोड़ा सा, आते हैं फिर से. ठीक है, okay. Karthikeya is raising hand. Yes, Karthikeya, please. What do you think? Hi. So basically barter system की अगर बात करें तो I personally have experienced this thing. ये चीज आज भी businesses and other industries में बहुत होती हैं. तो like we have a lot of customers जिनसे हम कोई material खरीदते हैं and we sell them some other materials as well. तो ये भी एक तरीके का barter system ही होता है. But of course you have a certain time limit associated कि आप monthly या yearly you take whatever the credit or the debit balance is, you clear that out. But
this thing also happens. COVID के time पे, of course, I think this is something जो काफी जगहों पे people are still doing. जैसे हमारा ही एक permanent taxi driver है. So currently, of course, there's since no major business. So he started working somewhere kirana store में. And that kirana store वाला, instead of paying him in cash, उसको कुछ he was giving him some ration वगैरह घर का. So for a very short period of time, I think it's going to help a lot of people. Okay. Okay. Saurav there wants to speak, please. Saurav. Okay. तो मैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, बिजनेस में, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड इट इज नथिंग टू डू विद कोविड. ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है. इट इज अ फ्री टूल टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स. फॉर एग्जांपल, मैं क्लियर देखो हूँ एंड लेट्स से आई हैव 1 लाख कस्टमर्स विद मी, और मैं स्विगी के साथ टाई अप कर लूंगा, बिकॉज स्विगी के कस्टमर्स हो सकता है ओवरलैप करे मेरे साथ, बट बहुत सारे न्यू कस्टमर्स हैं जो स्विगी के हैं जो मेरे नहीं है, बट मैं स्विगी के सारे डिलीवरी के साथ उनको एक फ्री अपना वाउचर दे दूंगा, सो दैट ऑल स्विगी कस्टमर्स कैन कम टू माय प्लेटफॉर्म इफ दे विश. सिमिलरली स्विगी मेरे कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहता है, स्विगी अपना कूपन दे देगा और मैं हर चश्मे के साथ कूपन लगा दूंगा. सो इट इज द इजीएस्ट एंड द फ्री वे टू acquire new customers. So I have done this a lot of time. Okay, yeah, so very good point कि अगर 2 businesses हैं, उनका target segment is very similar, then just issue coupons to each other and or some kind of promo code, and you know they can, it's like a barter deal, kind of a helping each other deal rather, because directly maybe object is not exchanged, it's more like a favor exchange kind of कि हाँ तुम मेरा cross marketing, I think cross marketing बोल सकते हैं इसको, cross selling बोल सकते हैं. Yeah, that's one good. So cross selling से बड़ा point है new customer acquisition. Sales तो होता ही है उससे, but new customer acquisition उससे भी एक बड़ा चीज है जो जिसके पीछे हर कस्टमर, हर ब्रांड जाता है. हर कस्टमर को नया ब्रांड चाहिए, नया कस्टमर चाहिए. Yes, Neeraj, please. I have a question for Saurav, if you can answer. Saurav जी, जैसे 2 businesses की बात करी, तो most of the time दोनों business का जो customer base है वो same नहीं होता होगा, और at times ये भी होता होगा कि काफी बड़ा gap भी होता होगा. तो उस type के scenario में like Swiggy suppose आपको 2 million customer दे रहा है और आप उनको 2 लाख ही दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या बार्टर चलता है, पॉसिबिलिटी है? अगर आप स्मार्ट बिजनेसमैन है तो पॉसिबिलिटी है. सो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू रिवील अ ब्रांड, बट yesterday we have closed a deal with one of the biggest ये जो ऑन डिमांड चैनल्स आजकल चल रहे हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन. हमारे पास मूवी ऑन डिमांड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो Amazon प्राइम हो, चाहे हॉटस्टार हो, Z5 हो, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. उनके पास तो मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स, मेरे पास तो लैक्स में ही है. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्मार्ट अ पर्सन इज. कॉन्टैक्ट्स है, आपका पॉइंट वैलिड है. 90% ऑफ केस में वो नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि उसके पास 100 लाख यूजर्स हैं, आपके पास 1 लाख यूजर्स हैं. बट अगर उसको आपके 1 लाख यूजर्स में वैल्यू दिख रहा है तो करेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इट डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. Yeah, it depends on case to case. Yes, Neeraj, please. Yeah, that was my question only. I will come back. So I will just add this यहाँ पे. So what Saurav said कि थोड़ा सा it also will be depending on your relationship. ठीक है, आप if you're an अनजान person and you just go कि ताज होटल में जाके बोले प्लीज मेरा वाउचर बांट दो, तो भगा ही देगा आपको कि कौन है, भागो यहाँ से, राइट. बट अगर आपको उससे you know his owner or you have some reference, right, किसी रेफरेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस हो गए, there is a good मैं छोटा सा, मैं स्विगी से भी बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ. आई एम एन एक्स पेटीएम के वॉलेट यूजर्स होंगे आई थिंक कम से कम 250 मिलियन. देयर आर 400 ऑनलाइन यूजर्स इन इंडिया, जिसमें से 250 मिलियन यूजर्स होंगे पेटीएम के.
सो मैंने पेटीएम के साथ कैशबैक चलाया था, क्लियर देखो का 3 साल से चला रहा हूँ मैं कैशबैक, क्योंकि मैं पेटीएम में हूँ तो आई हैव लिंक्स। डोमिनोज के भी इतने नहीं चले होंगे, स्विगी के भी इतने नहीं चले होंगे जितने मेरे चले हैं। सो बार्टर है, लेकिन उसको मेरे कस्टमर्स मिल रहे हैं, नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैं गांव में हूँ। गांव में हो सकता है पेटीएम यूजर्स नहीं हो, या मैं सॉरी रिमोट टियर 3 लोकेशंस में, वहां पे हो सकता है पेटीएम यूजर्स नहीं हो, जो उनके लिए टारगेट है। क्योंकि सारे अर्बन यूजर्स तो मतलब सारे सिटी वाले यूजर्स तो है ही उनके पास, लेकिन उनके पास मेट्रो यूजर्स तो है ही उनके पास, बट उनके पास वो रूरल ऑडियंस नहीं है। तो वो रूरल ऑडियंस में अगर मैं हूँ, सो इट मेक्स सेंस फॉर देम। प्लस ऑब्वियसली देयर इज अ नेटवर्क, सो पेटीएम से बड़ा एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता है, स्विगी भी उसका 100th होगा। Yeah, I think it's a very trust thing. I think जो barter deals भी I think एक चीज और है कि trust needs to be there. I'm just writing. Trust needs to. Yeah, अगर so trust है, भरोसा है, तो I think that 1 lakh versus 100, 1 crore deal can also happen. And ये सब एक और मैं example देता हूँ, colleges. So lot of colleges have their fest, right? And they try to find sponsors. So there are two kinds of sponsor. One is a cash deal, one is a kind deal, and one can be both. थोड़ा सा cash, थोड़ा सा kind. तो kind में क्या होता है? Usually discount vouchers होते हैं, या discount can be 100%, 50%, 10%, 20%, और some kind of lucky draw भी हो सकता है उसमें. जैसे कि हम लोगों ने भी, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, हमने फ्लाइट टिकट स्कॉलरशिप चलाया, अभी भी चला रहे हैं, अभी थोड़ा कोविड की वजह से रुक गया है। एंड दैट वन प्लेस आई मेट सौरव, जेपी यूनिवर्सिटी इन सोलन नियर शिमला। वहाँ पे भी हमने लाइक 10 लोग को जो विनर्स थे वहाँ स्टार्टअप के, उनको वो फ्लाइट टिकट का स्कॉलरशिप दिया। 10 में से 1-2 यूजुअली हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक दे फाइनली गेट ऑनबोर्डेड टू आवर प्रोग्राम। सो दैट काइंड ऑफ बार्टर डील इज आल्सो डन कि हाँ चलो, मतलब उससे क्या है कि दे कॉल अस, है ना, एज अ स्पीकर। सो एक पर्सनल लेवल पे भी ब्रांडिंग हो गया, अपना बोलने का कुछ मौका मिल गया, फिर उनको कुछ हमने स्कॉलरशिप भी ऑफर कर दिया, हमारा कुछ एक तरह का कस्टमर एक्विजिशन हो गया। सो दिस थिंग्स हैपन अ लॉट। तो या मैंने भी विशाल को बार्टर डील ऑफर किया था कि वो मुझे फ्लाइट टिकट दे दे, मैं उनके ऑडियंस को कुछ सिखा दूंगा, उनके स्टूडेंट्स को, पर विशाल को बार्टर डील अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये तो चलता रहता है, ये तो बहुत सारे फॉरेन जाने के लिए आ जाते हैं बहुत सारे लोग। आई एम जोकिंग। ओके, ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइक बार्टर डील, टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक बार्टर सिस्टम। सो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैश में बहुत लो हैं लोग, राइट? So let's talk about some specific markets. I think we can add on more and more. Like one thing I see is grocery market, right? तो grocery तो ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, ठीक है? अब 3 टाइम का पता, आई थिंक कोविड में सबको ये पता चल गया कि रोटी कपड़ा और मकान में सबसे ज्यादा जरूरी इज रोटी। 3 टाइम तो चाहिए। कपड़ा मकान के कपड़ा के बिना भी जी लेंगे, जो बचे हुए हैं एक्सेट्रा। और मकान तो usually people have like rented or own, or maybe parents or whatever. So usually that's not an immediate need. That's why you will see, I mean, if you think about the business jumping up, I mean, business reviving, the real estate might revive later than the clothing market. And grocery तो कभी नीचे गया ही नहीं, right? It was always floating, stay afloat kind of, right? So इसमें so I want to like throw this question over, like open floor question, कि ये ग्रोसरी शॉप वाले से या ग्रोसरी में जो डील करते हैं उनके साथ क्या क्या बार्टर डील हो सकता है हमारा। तो इसमें लेट्स हियर सम ओपिनियंस। अभिषेक जनता, आर यू देयर? या यू आर बैक, राइट? अभिषेक, अतुल सर आप बताइए कुछ, स्टार्ट कीजिए आप। तो ग्रोसरी स्टोर के साथ क्या होता है, जैसे कि अभी रिसेंट कोविड-19 में क्या है कि ज्यादातर चीजें बंद हो गई हैं एक्सेप्ट कुछ एसेंशियल सर्विसेज। तो द ओनली प्लेसेस व्हिच आर ओपन हैव बीन अलाउड टू बी ओपन आर ग्रोसरी स्टोर्स। इंडिया में भी और ग्रोसरी स्टोर एंड मेडिकल एंड अदर सर्विसेज। तो खाना तो सबको चाहिए, तो ग्रोसरी स्टोर खुले रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बेचना है
तो उनके लिए ग्रोसरी स्टोर इज द ओनली आउटलेट दे कैन यूज। तो आप देखो किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चेकआउट काउंटर के पास आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि च्युइंगम वगैरह तो मिलेगा ही, मान लीजिए फोन चार्जर चाहिए, फोन, इस तरह की छोटी मोटी चीजें ग्रोसरी स्टोर में मिल सकती हैं। और चूंकि ग्रोसरी स्टोर में आप जा रहे हो अपने पर्स के साथ, वॉलेट के साथ, और वहां पे बहुत आदमी को आइडियाज आ जाते हैं कि अच्छा ये ले लिया, ये छूट गया, तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए और भी कुछ कुछ चीजें चाहिए, वो सारी चीजें ग्रोसरी स्टोर से ले लेते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर के साथ पार्टनरशिप काफी बहुत लोग यूज करते हैं। एक कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेफवे काफी बड़ा कैलिफोर्निया में जहाँ मैं हूँ काफी बड़ा ग्रोसरी चेन है। तो सेफवे क्या करता है, मेरी एक और कंपनी है जिसका एडवाइजर हूँ मैं, हेल्थ केयर की कंपनी है एकॉस एमडी। तो एकॉस एमडी ने सेफवे के साथ पार्टनरशिप कर लिया। तो ग्रोसरी स्टोर में आप बाकी सब चीज के लिए जा रहे हो, ग्रोसरी स्टोर ही नहीं है, मतलब वहां पे सब कुछ बिकता है, जनरल स्टोर है, बट साथ ही में उनके एक उन्होंने अपना AI ड्रिवन अपना वो भी हेल्थ केयर का भी एक स्टॉल टाइप का लगा दिया कि पेशेंट का अपना वो मेजरमेंट लेना है, कुछ ले सकते हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो करना है, तो निकलते समय या एंट्री समय, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्री करते समय और एग्जिट करते समय, उस समय बहुत सारी सेल हो जाती है, वो एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोसरी स्टोर बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनर हो सकता है अगर कोई यूज करना चाहे, क्योंकि हर इंसान को ग्रोसरी स्टोर रेगुलरली जाना पड़ता है। यस नीरज प्लीज। ग्रोसरी स्टोर का मुझे एक बिग बाजार का एग्जांपल याद आ रहा है। मैं बिग बाजार मेरे पड़ोस में है तो काफी रेगुलर जाता हूँ। वो एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि आप 10,000 दो और आपका हर महीने 1,000 रुपए आपके वॉलेट में आते जाएंगे 12 महीने तक। ठीक है, तो आपको एट द एंड आपको मतलब काइंड ऑफ 20% का फायदा है, और हर महीने खरीदने तो जाना ही होता है कुछ ना कुछ, तो 1,000 रुपए वो लग ही जाएंगे। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट वो पिछले 8-10 साल से चला रहे हैं। तो मेरे को बड़ा चुभता था वो, मेरे को लगता था यार मेरे बैंक से आज ही 10,000 रुपए चले जाएंगे, या मेरे क्रेडिट कार्ड से भी चलो सोचो 40 दिन बाद पे करना है, तो मेरे पास से 10,000 रुपए चले जाएंगे और ये मुझे 1 साल तक देंगे। पर फिर भी वो बड़ा फोर्स करते थे, सर ले लो, क्योंकि मैं रेगुलर था, मेरे पास उनके वो सारे मेंबरशिप वगैरह थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कुछ उनका हुआ, और बजाज फाइनेंस ने एक आउटलेट लगा लिया। बजाज फाइनेंस का सबको ही पता होगा, बड़े छोटे से टिकट साइज पे काम करते हैं लोन की मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि आप है ना ये जो 10,000 रुपए हमें दोगे, आप ये बजाज फाइनेंस से दे दो, और बजाज वाला बंदा साथ में बैठा है, वो आपके नंबर से अभी के अभी आपको सारा वो कर देगा, 10 मिनट का काम है। और आपको जो बजाज को जो ये 10,000 रुपए देने हैं ना, ये आपको 5 महीने में 2-2 हजार रुपए करके देने हैं। ठीक है, तो अब मेरे को वो सही लगने लगा कि मेरी जेब से एकदम से 10,000 रुपए नहीं जा रहे हैं, मेरे को हर महीने 2,000 रुपए देने हैं और मुझे एट दी एंड वो 12,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो अब ठीक है। तो उसके बाद वो जो था, मैंने फिर वो 2 कूपन बनवा लिए, एक अपने नाम से एक वाइफ के नाम से, कि हमारी शॉपिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे को उसके बाद लगा कि क्या बढ़िया, मतलब आपस में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कस्टमर एक्विजिशन का, कि बिग बाजार के पास ऑटोमेटिकली इतने सारे कस्टमर हैं, उनकी अपनी स्कीम जो चलती है वो भी चल रही है, और बजाज फाइनेंस को अच्छी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी मिल गई है, और वो जो छोटे टिकट साइज पे वो काम करना चाहते हैं वो भी है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी चीजें फाइनेंस नहीं करते हैं। अब हालांकि करने लगे हैं, हाउसिंग लोन वगैरह में भी आ गए। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे ग्रोसरी स्टोर से याद आया। मैं भी एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली वो इक्वेटेड EMI पे मिलते हैं। आई थिंक इंडिया में भी मिलने लगे हैं विद 0 इंटरेस्ट ऑलमोस्ट। मैं पहले आई यूज्ड टू लिव इन सिंगापुर, वहां पे मोस्ट आइटम्स वर गिवन ऑन दिस 0% इंटरेस्ट। सो उससे क्या होता था, स्टोर वाले का भला हो गया। ठीक है, अगर मैंने जैसे लैपटॉप, इनफैक्ट जिस लैपटॉप से मैं ये चला रहा हूँ GD, इसका मैंने 36 मंथ्स का ये लिया था। ठीक है, तो हर महीने और इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, तो 3 साल में मैंने उनको पे किया 0 इंटरेस्ट। ठीक है, और मेरे को लैपटॉप Day 1 से यूज करना मिल गया।
तो it is a very good deal for lot of people that way. अब क्या है कि इससे फायदा किसको किसको हुआ? मुझे तो हुआ, so मेरा तो immediate फायदा ऐसा है कि what I gain is I am not paying any extra interest, and मेरा जो whatever amount X amount I had to pay, it got into divided by 36. So my burden reduced that way. Credit काले वाले का क्या फायदा हुआ? Because Singapore is a small country, it's a city actually, like probably like Pune or something you can say. 5 करोड़ का पॉपुलेशन, 5 करोड़ बोल रहा हूँ, 50 लाख का पॉपुलेशन है, ठीक है, छोटा सा है. So there are like 20 banks, everybody is looking after customer acquisition. अब वो बैंक वाले को क्या फायदा हुआ? जिस क्रेडिट कार्ड से आई यूज दिस EMI, उनको 36 months का स्टिकनेस मिल गया है मेरे तरफ से, because now I will stick to that credit card for 36 months minimum. I'm not going to let go, and there will be a recurring billing on that credit card. Store वाले को क्या फायदा हुआ? Store people got their sale done, so they got the money probably upfront या जैसे भी उनका क्या deal है, I don't know exactly, but so all parties got benefited here, right? So this is like an ecosystem we can think कि ऐसा कितना अच्छा इकोसिस्टम बन गया, इसमें सबका भला हो गया और सबका काम भी हो गया. यस सौरभ, प्लीज. You have to unmute, sir. ग्रोसरी का एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है. अभी रिसेंटली अप्रैल के टाइम पे Zomato started selling grocery. So it tied up with I think Big Basket or Grofers, मुझे ध्यान नहीं है. But Big Basket were short of delivery partners. And Zomato is very strong in deliveries. Zomato को ने कुछ कमीशन ले लिया, आपने Big Basket को डिलीवरी बॉयज मिल गए. So this is a kind of barter. Uber Eats जो आया था, अभी तो वो फ्लॉप हो गया पूरा. Uber Eats में क्या हुआ कि दो बिजनेस आपस में, Uber के ही दो बिजनेस है, लेकिन वो आपस में बार्टर कर रहे थे. इसका डिलीवरी ग्रोसरी के लिए भी यूज कर रहे थे. So ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लार्ज स्केल में बार्टर का. Even both are getting benefits. Yeah. Even मैं कोलकाता का एक स्टार्टअप है वाओ मोमो. I think they are expanding to other cities also. They also moved to this grocery delivery because अब obviously मोमो खाने तो कोई जाएगा नहीं, अभी तो घर के ही खा रहे हैं. I think 3 महीने से लोग, I think everyone is probably enjoying home cooked food, I guess. बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा जब बाहर का कुछ आपने खाया होगा इन जनरल. मैंने खुद नहीं खाया, अभी 3 महीने से घर के ही खा रहा हूँ. तो बहुत सारे फार्मा कंपनीज ने भी ग्रोसरी शुरू किया. करेक्ट. तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स है दोनों. यस, दोनों ही एसेंशियल है. तो वो जैसे वाओ मोमो ने भी स्विगी से कर लिया टाई अप कि ओके लेट्स हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक टाई अप. सो वी हैव सो मेनी पीपल लेफ्ट, आई मीन भरे पड़े हैं हमारे पास, कुछ कर रहे नहीं है, so let's just let them put into grocery thing. And Swiggy का already delivery boys है, and I don't know, probably Wamomo also engage their people into delivery boys. क्योंकि एक चीज जो सौरभ ने भी बोला that delivery boys का scarcity हो गया था. I think ये बहुत common problem था, है rather अभी भी I guess. I think still maybe recovering. So there was a ultimate shortage of delivery boys for all the delivery companies. Because a lot of people thought कि हाँ चलो लॉकडाउन है, 1 महीने का है, ये है वो है, क्यों रिस्क लेना है. ठीक है, अब 2-3 महीना हो गया तो they started coming out, but initially a lot of people were like too precautious कि चलो अब 1 महीना है, आराम ही कर लेते हैं, क्यों इतना रिस्क लेना. So a lot of people ran out of grocery, and even we had one presentation in our GD. One of the person who were doing home cooked food delivery, they also came to this grocery. तो मैंने भी किसी को आइडिया दिया था ऐसा कि ये आइडिया क्या दिया था, मैं सोच रहा था अपने लिए भी कि एक इंगेज करने के लिए सारे उबर ड्राइवर्स खाली पड़े हैं और सारे स्टोर को डिलीवरी बॉयज चाहिए. सो व्हाई कांट वी डू सम काइंड ऑफ डील विथ उबर और उबर कोच रादर कोच उबर ड्राइवर्स की. उबर ड्राइवर आप लोग कुछ नहीं है, पड़ा हुआ है कार, ये है वो है, so why don't you do delivery, and you can do a very premium delivery kind of thing. ऐसा नहीं है कि you have to deliver for 100 rupees, 50 rupees, but you can maybe do like for 1000 rupees or something, but then whole colony can order things from you. So
that's also another thing for barter that probably Uber or Ola could have done, but I think they didn't really do much of a change of plans and things, and उस वजह से I don't know, we have seen कि Uber का इतना सारा ले ऑफ वगैरह हो गया. एक चीज और इसमें आते हैं कि आई थिंक अपना लोकल किराना स्टोर जो है, लाइक जैसे बिग बाजार वगैरह तो बड़ा हो गया, फिर भी लोकल किराना स्टोर वगैरह है, उसको हम लोग let's say I think not everyone can offer them a barter deal though, or maybe offer a barter deal through a chain of things, कि like आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ. तो ग्रोसरी शॉप ओनर्स या इन जनरल आई थिंक ये बार्टर सिस्टम किनके बीच काम कर सकता है, लाइक एट अ वेरी B2C if you think, like let's say one example मैं देता हूँ. डॉक्टर है, उसने किसी का वैक्सीनेशन किया या इलाज कर दिया, राइट, और एक let's say क्लीनर है या व्हाटएवर, उसने उसका घर जाके क्लीन कर दिया, व्हाटएवर, इस टाइप से. तो ऐसा इफ यू कैन थिंक मोर एग्जांपल, मे बी यू कैन आस्क अमन. अमन, व्हाट डू यू थिंक? तुमने कुछ बार्टर किया कभी कॉलेज वगैरह में अपने दोस्त साथी? Yeah, yes, yeah. Sorry, Aman, unmute one more time, please. Sorry. हाँ, बोलो. Yeah, I'm listening. Audible? Yeah. So, yeah, तो बताना चाहोगे से इसमें स्टूडेंट टाइम पे तो ज्यादा कुछ बार्टर लोग करते नहीं है, फिर इस टाइप का देखा नहीं है कि तुम ये कर दो वो, बट हाँ बेसिकली होमवर्क कर दो मेरा, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा दूसरे सब्जेक्ट का. इतने अच्छे कॉलेज से तो आ नहीं रहा मैं तुम्हारा प्रॉक्सी डाल दूंगा, मैं तुम्हारा प्रॉक्सी डाल दूंगा, बार्टर बहुत होता है. सही बताऊं तो सर उस टाइप का यूनिवर्सिटी या कॉलेज है नहीं मेरा कि मैं उस टाइप चीज ही करूं, बट हमने एक इसके रिगार्डिंग एक कम्युनिटी का करा था जहाँ पे हम लोग नॉवेल एक्सचेंज करते थे, ठीक है. लाइक हमें एक बना दिया एक पूरी सिटी में, या फिर अलग अलग कॉलेज को जोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारे पास जो नॉवेल है हम लोग एक दिन एक्सचेंज करेंगे, एक दिन मीटअप करके, तुम मेरा तुम मुझे जो नॉवेल अच्छा लगेगा मैं तुम्हारा लूंगा, तुम मेरा लोगे, फिर एक लिस्ट बना के उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है. इस टाइप से सारी चीजें होती थी. और बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट में, अगर आप हॉस्टल नहीं लिए हो तो आप लॉज लेते हो, लॉज में आप रहते हो, या फिर अपने से कुछ खाना वगैरह कहीं बनाना पड़ता है. अगर आप अनदर साइड ऑफ बात करो स्टूडेंट्स की, तो ये चीज होता है कि मैं सब्जी वगैरह काट रहा हूँ तो तुम आज सब्जी बनाओगे या रोटी बनाओगे, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरह से चीजें भी होती हैं. या फिर आप एक और चीज करते हो कि या अक्सर हम लोग घर पे भी यूज करते हैं कि हम लोग दूसरे के ऐसे आस पड़ोस में जाते हैं कि तुम मुझे लहसुन दे दो, लहसुन खत्म हो गया, तुम लहसुन दो और मैं तो मिर्ची वगैरह दे दूंगा. तो ये आसपास की चीजें हुई हैं स्टूडेंट लाइफ में, बट उतना भी कुछ नहीं हुआ सर खास बिजनेस वाला जो होता है. ठीक है, तो हुआ नहीं, मतलब व्हाट डू यू थिंक, लाइक ऐसा अगर तुम बिकॉज़ यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रेजुएट, कैन यू थिंक ऑफ सम बार्टर डील फॉर योरसेल्फ, लाइक अभी ये कर लो वो कर लो, क्या करो क्या नहीं करो, मैं आपके लिए ये कर दूं, आप मेरे लिए ये कर दो, ऐसा कुछ माइंड में हैव यू, आई मीन anything coming to your mind, or maybe you can take some time. Ujjwal wants to say something. Let's hear sure. Ujjwal first. Yes, Ujjwal. हेलो. सर मैंने देखा है, मेरा खुद का है कि सर एजुकेशन सिस्टम में बहुत होता है. लाइक मैं बीकॉम की कोचिंग करता था, और कैट जो एमबीए के एग्जाम होते थे, एमबीए की कोचिंग थी, वो लोग दोनों आपस में टाई अप कर लेते थे. बीकॉम वाले के पास बहुत ज्यादा बच्चे होते थे और एमबीए वाले में ज्यादा होता नहीं, क्योंकि मैक्स ऑफ द बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते, तो वो कुछ कमीशन दे देते थे बीकॉम वाले कोचिंग वालों को, और वो बच्चे को टाई अप कर लेते. लाइक मेरी कोचिंग वाले थे कैरियर लॉन्चर, कोई जानता होगा तो पता होगा, तो उन्होंने कैरियर लॉन्चर के साथ टाई अप कर दिया. और कई एमबीए वाले स्टूडेंट टीचर्स जो होते हैं वो ये भी करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि आप ग्रुप में आओ, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा, बल्क डिस्काउंट दे दूंगा. लाइक 40,000 किसी की फीस है, तो मैं सब जैसे 10 लोग आ रहे हो तो 35 तुम के कर दूंगा. तो इस टाइप का भी बार्टर सिस्टम बहुत चलता है. ओके, यस. और तुमने अपना कुछ किया बार्टर कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, तुम मेरा ये काम कर दो? सर मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, किया है, बट मैंने अभी सोच रहा था. मैं अभी सोसाइटी, हम और अमन और एक और लड़की है साक्षी, तो मैं उसके लिए कुछ सोच रहा था कि लाइक हम मेरे बहुत से कांटेक्ट हैं एजुकेशन से लेकर स्कूल्स, कोचिंग्स, तो हम उनको थोड़ा सा गैदर करके फिर थोड़े अच्छे अच्छे लोग आईआईटीएंस वगैरह को बुला के
जिनको बहुत कुछ करना है, फिर हम क्यूजेस वगैरह करा के फीसेस 50-50 रुपए चार्ज करके इनसे कोचिंग के स्पॉन्सरशिप लेके लाइक आजकल सारे टीचर्स ऑनलाइन होना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा था कि वो सारे टीचर्स को लाइक हमारे पास 100-200-1000 लोग जुड़ जाते हैं तो टीचर्स को भी मिल जाएगा कि ठीक है भाई इनके पास तो 1000 बच्चे हैं, वो भी ऑल ओवर द इंडिया, तो वो हम पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो सकते थे। तो मैं ये चीज सोच यस Okay, Vineet Singh has also joined. Vineet, Mr. Vineet, are you here? Karthike, okay, Karthike. Are you there, Karthike? Yes. Yeah, you are telling a bit about the deals that you are made in your company, cross selling. You थोड़ा सा enlighten us a bit more how you crack those deals and what terms and things like that, or you face any problems in this kind of barter deals? So I mean, it depends on a lot of people. So ideally, like, let me tell you something. We have a very so we manufacture chemicals and we do it for very big companies. So usually it depends from person to person. उनकी खुद की personally क्या calculations होती हैं. So for instance, मैं अगर एक example दूं तो जिनसे हमारा बहुत major transactions रहते हैं. Whatever we do तो हम लोग ईयर एंड पे whatever मेरा क्रेडिट है डेबिट है उनका जो भी है तो वी सेटल दैट अमाउंट, बदले में हमारे परचेज एंड सेल्स के ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सो पहले बहुत पहले पापा बताते हैं लॉन्ग बिफोर इवन आई जॉइंड एवरीथिंग वाज मैनुअल. इवन सामने वाली जो पार्टी थी वो भी कोई कंप्यूटर वगैरह पे नहीं करते थे, तो दे यूज्ड टू प्रेफर कि हर एक बिल के अगेंस्ट एक चेक दे दिया जाए. इवेंचुअली इवन दे शिफ्टेड टू बार्टर सिस्टम ओनली. तो अब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर अप्रोच इज. जैसे वी डोंट रियली कैलकुलेट द इंटरेस्ट जो आपको कैश फ्लो में आता है, तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. इट्स आई बिलीव वेरी हार्ड टू डिफाइन, बट हाँ मैं पर्सनली इस अप्रोच में ज्यादा बिलीव नहीं करता बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग समथिंग in kind, but at the end of the day it's always the cash flow which matters a lot. तो खैर वो अलग अलग अप्रोच होती है अपनी. नहीं वो तो ठीक है. आई थिंक ये कैश फ्लो का कहीं ना कहीं हमें आदत लगा दिया गया है एवोल्यूशन, बिकॉज एक जमाने में तो बार्टर ही चलता था. ठीक है. आई गेस द कैश मेड थिंग्स स्ट्रॉन्गर स्टैंडर्ड, सो दैट वाज वन थिंग. And like I was saying, cash ही है, but still, that credit, the points, let's say, you can, keep accumulating and things like that. बट पहले भी जो बार्टर सिस्टम होता था तो ऑफ कोर्स आई मीन कैश वाली बात आपकी सही, बट उस टाइम वो होता था ना कि जैसे मैंने अभी अपने लेबर का एग्जांपल दिया कि आप यहाँ काम कर लो एंड बदले में आपको एक बोरी अनाज मिल जाएगा और व्हाटएवर माइट बी द अमाउंट. बट आज भी जो बार्टर सिस्टम एटलीस्ट इंडस्ट्रीज में फॉलो करते हैं दैट ऑलवेज हैज अ मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड टू इट. Yeah, that's fine. I think that can standardize thing. एक और चीज पे आते हैं, थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन हुआ था थोड़ा सा ऑफ. आई मीन इट कैन स्टिल बी सीन एज अ बार्टर. डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है. मैं इंडिया में ही था उस वक्त और दूसरे दिन पार्टी था हमारे घर. ठीक है. अब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए. ठीक है. मैंने ये बोला कि अगर मैंने मतलब सोचा, बोला है जो भी अपने आप से बोला कि ये 500,000 के नोट बंद तो हो गए हैं, ये ऊपर से ऑर्डर आया है, बट व्हाट्स प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम स्टिल सॉर्ट ऑफ यूजिंग दोज कैश टू डू आवर डील्स. अब वो पैसे तो मतलब अगर सब लोग ही बोल दे कि आई सॉर्ट ऑफ नॉट गोइंग टू ओबे गवर्नमेंट का चीज आज या व्हाटएवर फॉर फ्यू आवर्स और वन मोर डे, तो वो 1500 का चीज से एटलीस्ट उस दिन का बिजनेस तो चल ही सकता था, या I don't know, उस दिन का बिजनेस या कुछ और दिन का बिजनेस etc. So anything comes to your mind, I mean like let's say violating a rule in a pseudo format kind of. Abhishek Janta, are you there? बताओ अभिषेक. Yes. डिमोनेटाइजेशन क्या हो गया, क्वेश्चन? बट फिर भी मैंने 500,000 का नोट चला दिया है, उसमें क्या गलत है? नहीं गलत क्या है, कुछ नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये तो इलीगल भी हो गया ना कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि 12 बजे के बाद से ये नहीं करना था, बट फिर भी जस्ट टू पुट मॉनेटरी वैल्यू एंड बिकॉज आई हैड
नो कैश। नहीं तो वो तो एक्सचेंज हो रहा था, नो चल तो नहीं रहा था, वो तो एक्सचेंज हो रहा था गवर्नमेंट का प्रोसेस के अनुसार। ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी दुकान में ले जाकर नहीं, मैं जैसे दुकान की बात कर रहा हूँ कि दूसरे दिन अगर दुकान वाले उसको एक्सेप्ट करना बोलते कि एक दिन और चलने दो, क्या दिक्कत है, अचानक से नहीं मान पाएंगे इतना रूल। लिया भी होगा आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं चला। नहीं लिया हुआ। आई थिंक हर चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वैसे तो नहीं चल सकता है कि मतलब बट उस नोट पे लिखा नहीं है ना कि किस दिन आया हो गले में। नहीं जैसे एज फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर दे कि जूम ऐप जहाँ पे हम लोग बात करने लोग वो नहीं यूज करना है रात के 12 बजे से, तो 12 मीन्स 11:59 तक आप कर सकते हैं, लेकिन 12:01 में कीजिएगा तो आप इलीगल कहलाइएगा। तो आई थिंक हर चीज का एक टाइम लिमिटेशन होता है। अगर टाइम लिमिटेशन नहीं होता तो फिर कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाता। अब जैसे हम लोग 10 बजे इवेंट कराते हैं लोग, तो कोई आए या ना आए आप 10 बजे आते हैं, ठीक है, ये क्योंकि आप इवेंट को होस्ट करते हैं। जब आप ही 10:30 बजे आइएगा तो फिर वो कैसे होगा? तो टाइम लिमिटेशन सही चीज है। ओके, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि एक दिन और कर देता है, ठीक है, फिर कोई क्या सोचता है, दुकानदार अरे नहीं तो फिर कोई क्या सोचता है, अरे 2 दिन कर देता और क्या जाता है, 3 दिन कर देता है, पर पता नहीं है कि एक दिन में ही कितना आदमी क्या क्या कर सकता है। उसके लिए 2 घंटा ही काफी है, एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया। यस नीरज, हाँ प्लीज योर कमेंट। सर स्पेसिफिकली मैं इसी के बारे में जो आपने पूछा डिमोनेटाइजेशन वाला, इसके बारे में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया था और इसमें लिमिट दी गई थी हर किसी को कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आप के पास कैश है आप जाके बैंक में जमा कराइए, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो उस दौरान ऐसा नहीं था कि हर एक आदमी के पास 2.5 लाख रुपए थे या 2.5 लाख से ज्यादा थे। बहुत लोग थे जिनके पास 1 लाख भी नहीं थे, 50,000 भी नहीं थे। तो मैं काफी लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने दूसरों के पैसे लेके जमा कराए अपने खाते में, क्योंकि 2.5 लाख तक का तो सबको अलाउ था ही ना। और उसमें भी अगर मोदी जी ने सपोज, मेरे को डेट याद नहीं है, सपोज 10 नवंबर को बोला, ठीक है, तो उन्होंने जो कितना 1 महीने का 45 दिन का जो टाइम दिया, तो उस दौरान तो वो वैलिड थी वो करेंसी। अगर आप उसको एक्सचेंज भी कर रहे हैं, कुछ खरीद भी रहे हैं और सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसकी 2.5 लाख की लिमिट नहीं पूरी हो रही है, तो दैट वाज लीगल, ठीक है। उसमें इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बार्टर, वो वैलिड करेंसी थी जो कि चल रही थी और बंदे की अगर कैपेसिटी 2.5 लाख से कम है तो वो एक्सेप्ट कर रहा था, हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा था। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे एक क्लोज में फ्रेंड है जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है काफी बड़े लेवल का, ठीक है। उनके यहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स काम करते थे, जितने भी दुकान में काम करते थे और आसपास घर में भी काम करते थे, इवन जो भी थे लोग, उन्होंने सबको जितनी भी उनकी लिमिट बची हुई थी 2.5 लाख से नीचे, किसी के पास अगर घर में 10,000 रुपए पड़े हैं तो उसको 2,40,000 रुपए दे दिए कि तू ये डलवा, और सबको करके उन्होंने अपना पूरा कैश खाली कर दिया। हालांकि उन्होंने गलत किया, उन्होंने इलीगली खेला उस गेम को पूरा, ठीक है। क्या बोलेंगे, लूपहोल निकाल लिया उसने। हाँ, लूपहोल निकाल के खेला और पूरा वो अपना कैश खाली कर लिया, जो कि उनका अपना था, लेकिन उन्होंने 50 बंदों में बांट के वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो उसको पूरा खाली कर दिया। लेकिन उसमें भी लूपहोल काफी बड़ा था, एक तो लिमिट वाला और एक वो टाइम था जिसमें करेंसी चल रही थी। और मैं तो इवन ये कहूंगा उस बंदे के बारे में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने लोगों से कैश लेके सोना भी बेचा उस टाइम पे, ठीक है, और उसको भी एडजस्ट किया। बहुत कमाया भी उस दौरान उन्होंने, क्योंकि लोग घूम रहे थे पैसे लेके कि कुछ मिल जाए, उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैं सोना दूंगा तुम्हें। नहीं, और ये जो सोना का जो तुमने बोला ना, तो देयर इज समथिंग एल्स दैट गोज इन माय माइंड कि अगर लोग सोना एक्सचेंज करके कुछ खरीद लेते, बार्टर डील जैसा हो जाता, बट वो ना पुराने जमाने में चले जाते जहाँ सोने की किडनी दे के करता है कि हाँ ये लो, ये 1 ग्राम है 2 ग्राम है जो भी है, इसका इक्विवेलेंट मेरे को सामान दे दो। तो ये कहीं ना कहीं वो डिमोनेटाइजेशन पूरा, आई डोंट नो, आई मीन क्या हो जाता पूरा
नॉट सो श्योर क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक? आई मीन अतुल सर आप क्या बोलते हैं, बताइए। अगर लोग सोना को एक्सचेंज करना शुरू कर देते उस वक्त तो क्या होता? तो क्या है विशाल कि ये सोना का वैल्यू क्यों इतना आता है, क्योंकि बहुत सालों पहले इंग्लैंड और जब करेंसी को सोना से सोसाइटी में हजारों साल से ज्यादातर सोसाइटी में सोना का वैल्यू स्टैब्लिश हो गया है। एंड उसमें टाइम लगता है किसी भी चीज को, कि कोई भी आदमी कहीं भी एक्सेप्ट कर ले, वो क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है। तो सोना वो स्टेटस प्राप्त कर चुका था कि आप करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे जाते रहती है, लेकिन सोना का वैल्यू ऊपर नीचे आए, बट उसकी रिलायबिलिटी कि आप कुछ भी हो जाए, जैसे कि कभी परिवार में टेंशन होता है, शादी का माहौल है, बहुत खर्च होने वाला है, तो क्या होता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई किसी और तरह की, तो क्या होता है, मम्मी लोग और परिवार के लोग अचानक अपना छुपा कर जो रखती हैं सोना का ज्वेलरी, और सोना उसको बेच सकती हैं, क्योंकि सोना के पीछे दुनिया भर में, मतलब सोना जो है अक्रॉस ज्योग्राफी, अमेरिका हो, चाइना हो, भारत हो, पूरे वर्ल्ड में सोना एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश हो चुका है। उसके पीछे लंबी हिस्ट्री में, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सोना की स्टैब्लिश हो गया। सेम चीज लोग चाहते हैं अपनी करेंसी को भी बनाना। तो जैसे कि अमेरिका ने कोशिश किया है और काफी सक्सेसफुल रहा है डॉलर को सोना जैसा बनाने का, कि डॉलर इज एज गुड एज, तो अभी एक अमेरिकन इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया में अचानक सारे लोग डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, करेंसी रिजर्व्स डॉलर में, क्योंकि डॉलर का एक वैल्यू बताओगे, एक जमाने में पहले पाउंड का ये स्टेटस था। और चाइना, जिससे कि हमारे थोड़ा अभी टेंशन चल रहा है दुनिया का, तो चाइना ने कोशिश की है कि चाइनीज करेंसी भी ऐसा आ जाए कि वो डॉलर से पेग नहीं रहे और अब खुद में हो जाए। उनको सक्सेस चांसेस है कि उतना नहीं मिलेगा, लेकिन और उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया को अगर तेल खरीदना, ऑयल एंड गैस लेना पड़ता था मिडिल ईस्ट कंट्री से, तो इंडिया ने एक अच्छी काम किए कर लिया, कुछ कंट्री से ये भी कर लिया, कुवैत से और बहुत सारे कंट्रीज में, कि हम आपको डॉलर नहीं, हम आपको सीधा रुपया में आपको हम डायरेक्टली हम आपसे ऑयल खरीदेंगे और वो आपस कर ले। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, कि सामने वाला को आप में भरोसा है कि नहीं, आपको उसमें भरोसा है कि नहीं, और भरोसा कितना लॉन्ग लास्टिंग है। कि मैंने अभी तो आपके बात में बार्टर कर लिया, बट पता चला कि मैंने जो बदले में लिया आपसे, उसका वैल्यू अचानक नहीं रहेगा, वर्थलेस हो जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना वैल्यू जो है ना, हम हर इंसान में हम लोग सोना है और हमारा वैल्यू को बरकरार रखना चाहिए। कि विशाल को मैंने ये प्रॉमिस किया कि ये मैं कर दूंगा, तो विशाल तो मैं कर दूंगा। तो वो आपका जो रेपुटेशन जो एस्टैब्लिश रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बार्टर इकोनॉमी में भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रिलेशनशिप और रेपुटेशन काम आता है। कि गांव के कोई साहूकार हो या जो भी है, पर उनका रेपुटेशन होता है कि भाई उनके पास इतना पैसा है या उनका इतना रेपुटेशन है कि वो आपको कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से बार्टर इकोनॉमी में वो चीज हुआ करती थी जब ट्रस्ट नहीं था। बाद में बार्टर से हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होकर आ गए पे, पाउंड एंड डॉलर पे। एंड आई थिंक अभी कोरोना टाइम में भी हमने ये देखा है कि जो जैसे नीरज ने बोला कि लोग आजकल जाते हैं दुकान में कभी कभी बोल के भी कि मैं आपको दे दूंगा, तो उस दुकान वाले को भी, लोकल दुकानदार वाले को पता है कि नीरज जी रेगुलर हमारे कस्टमर है, इनका काफी अच्छा तो नीरज जी को वो दे सकता है। तो यही मैं बस बोलना चाह रहा था कुछ पॉइंट्स ऑन बार्टर, कि बार्टर इकोनॉमी थी पहले, और बाद में फिर बार्टर से मतलब कि गोल्ड से पाउंड एंड डॉलर, और फिर वापस हम लोग कोरोना टाइम में फिर से हम लोग थोड़ी बहुत उस बार्टर इकोनॉमी में आ गए। क्योंकि और एक लास्ट चीज कि उसमें डिजिटल वाला एंगल आ गया कि आज करेंसी के बहुत सारे डिजिटल करेंसीज भी आ गए। बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा करेंसी और बिटकॉइन ऑल दैट। तो डिजिटल भी एक अलग है। आपका क्रेडिट कार्ड ही आपका डॉलर से भी बड़ा आजकल क्रेडिट कार्ड आपके पास है, डेबिट कार्ड है, तो सारा काम आपका उससे हो जाएगा। तो बार्टर इकोनॉमी, बहुत सारे लोग आजकल जो घर से निकल नहीं सकते, बट क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सारा कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। और कोरोना में एक और प्रॉब्लम हो गया कि करेंसी जो है बहुत लोगों ने छुआ है, तो दैट बिकम्स अ बिग कैरियर कि आप डॉलर या रुपया जो भी दे रहे हो दुकान को, तो आप बहुत वायरस भी फैला रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं, आपको छूना नहीं है, आप सीधा
क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, मुझे डॉलर ना लेना है ना देना है, या रुपया लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट कर दो। तो ये डिजिटल वाला पार्ट जो है ना, ये मेरे ख्याल से बार्टर इकोनॉमी को रिप्लेस कर रहा है और कर लेगा। Okay, Sachin has joined. Sachin, welcome. Sachin unmute करना होगा। सत्तू वाले सचिन। हाँ, सत्तू वाले सचिन। सचिन को मैंने अलग से बुलाया because I have seen him doing lot of barter deals with different people, including me. So Sachin, please थोड़ा सा throw some light on your barter deals for your advertisement or etc. whatever. आप लोग सबको नमस्ते। आप लोग सब बढ़िया, मतलब सेफ हो, कुशल हो। कोविड टाइम पे यही बहुत है अभी हम लोगों के लिए। विशाल सर के साथ इनिशियल स्टेज से ही बार्टर सिस्टम हम लोगों ने कंटिन्यू रखा एंड लकीली बहुत अच्छा काम भी आया। बार्टर सिस्टम से हमेशा ही आगे बढ़े हम लोग, और एज अ स्टार्टअप वी कांट अफोर्ड कि हम लोग कैश बर्न करें या कुछ ऐसे पैसे वैसे कहीं भी खर्च करें। तो बीइंग अ प्रोडक्ट, सत्तूज को हर जगह पहुंचाने का ये सबसे आसान तरीका था हम लोगों के पास। एंड अभी भी हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, कि कहीं भी किसी से भी कुछ भी चाहिए या कोई भी चीज हमें करना है, प्रमोशन, क्रॉस प्रमोशन करना है, तो वी आर यूजिंग बार्टर ओनली। तो एक रूल है जो हमें अभी तक काम आ रहा है, जिसको फॉलो करने से हम लोग को फायदा हो रहा है। तो हर नए स्टार्टअप को मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि नहीं, use barter as much as possible and save cash. तो सचिन ने barter में ना, what he does is he gives his sattus to various colleges या various events या जहाँ भी, यहाँ ये लोग ये ना 1 डब्बा 2 डब्बा ये है वो है, हमारा लोगो डाल दो, प्रमोशन कर दो थोड़ा सा, and if he gets time he also goes there. So he has been following this, so this is what he has been doing. So Sachin, also maybe talk about some hurdles you might have faced in this barter deal at times, like बहुत सारे college I think reject you also for this कि नहीं हम आपके साथ कुछ cash भी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, या इतना दीजिए at least. So how do you how you have dealt with it the last 2 years? See, बहुत सारी जगहों पे एक्चुअली ना बोलना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे बुरा भी लगता है कि लोग अगर बहुत कम अमाउंट भी मांग रहे हैं, लाइक मतलब 5,000 भी मांग रहे हैं या 3,000 भी मांग रहे हैं, तो वी स्ट्रिक्टली फॉलो के सॉरी सर। अगर 500 रुपए भी कोई मांगता है तो आई से सॉरी, बिकॉज मनी 500 हो या 5,000 हो, इट्स लाइक प्रीशियस थिंग टू अ स्टार्टअप। कैश बर्न नहीं कर सकते, वी आर नॉट टेकिंग सैलरी, राइट? जब हम स्टार्टअप करते तो अपनी सैलरी नहीं लेते। तो व्हेन वी आर नॉट पेइंग आवरसेल्फ, हम अपने एम्प्लॉइज को भी बहुत मतलब कम ही सैलरी दे पाते हैं। तो व्हाई टू पे फॉर एनी प्रमोशन इन कैश? मतलब ये नहीं बोलना कि आप अपना टाइम नहीं दीजिए या अपना प्रोडक्ट नहीं दीजिए, दोनों चीजें दीजिए, बट कैश अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनिशियल स्टेज में। Sure. Saurav there, are you? Yes, Saurav, you have been running, you said ki lot of Paytm cashback for your promotions and things like that, right? So कहीं ना कहीं वो कैश घूमता रह जाता है, राइट? घूमता रह जाता है, घूमता रह जाता है, घूमता रह जाता है। So how you I mean deal with that cash वाला चीज? I mean I don't know. I mean, do you see it as a cash burn or you see it as something else? So it is a strategy to acquire customers. मैं आपको पेटीएम के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्लियर देखो के बारे में नहीं। तो विजय शेखर शर्मा ने सबसे पहले क्या किया, paytm.com बनाया जिसमें वो मोबाइल रिचार्ज करते थे। इट वाज जस्ट अ मोबाइल रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स ऐप, जिसे पेटीएम कहते हैं, पे थ्रू मोबाइल। दिस वाज द नेम ऑफ पेटीएम, दिस वाज द। तो अब कस्टमर ने पे किया, एयरटेल का बिल दिया, अब एयरटेल का बिल दिया और पेटीएम ने बोल दिया तुम्हें 10 रुपीज कैशबैक दे दूंगा। अब 10 रुपए पेटीएम वॉलेट में आ गए। अब पेटीएम ने सोचा इस 10 रुपए का, ये वर्चुअल करेंसी है, मैं अब 10 रुपए को कैसे यूज कर सकता हूँ टू इंक्रीज माई कस्टमर बेस। उसने क्या किया, उसने अपना एक paytm.com लॉन्च कर दिया और वहां पे बोल दिया कि आप पेटीएम में अगर कैश है आपके पास तो आप पेटीएम से पे कर सकते हो। तो लोगों ने वो 10 रुपए को यूज किया पेटीएम वेबसाइट में जाके मोबाइल खरीदने पे, और वो 10 रुपए वापस पेटीएम के पास ही आ गया, और पेटीएम ने मोबाइल खरीदने पे फिर से और कैशबैक दे दिया।
तो लेट्स से 100 रुपए कैशबैक हो गया। अब पेटीएम ने क्या किया, मैं फिर से कैसे 100 रुपए को यूज करूं, पैसा उसी के पास है, पेटीएम के पास ही घूमे जा रहा है। अब उसने क्या किया, अब उसने सोचा कि थर्ड पार्टी मर्चेंट्स के पास जाते हैं, तो वो क्या किया, बुक माई शो के पास चला गया, मेक माई ट्रिप के पास चला गया, बोला तुम भी ये करेंसी यूज करने लग जाओ। पेटीएम वाज द 34th वॉलेट एंड इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल टिल डेट। 33 फेल हो गए क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं बना पाए। तो पेटीएम ने बुक माई शो के पास भी चला गया। अब वो बंदा जो है वो बुक माई शो पे भी यूज कर सकता है पेटीएम वॉलेट, पेटीएम.com पे भी यूज कर सकता है, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकता है, तो उसको दूसरा कोई कैश की जरूरत ही नहीं है। और विजय शेखर शर्मा ने कहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज, मैं इसे कैशलेस इकोनॉमी बना दूंगा। तो हो सकता है फ्यूचर में कैश चला जाए, वैसे भी कैश की वजह से बहुत करप्शन है, सो यू नेवर नो, डीमोनेटाइजेशन एक बार आ चुका था जिसके वजह से पेटीएम को इतना बूस्ट मिला, यू नेवर नो पूरा वर्चुअल करेंसी हो जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड वर्चुअल करेंसी हो जाए, बिकॉज इट कैन ट्रैक्ड एंड इट कैन रिड्यूस करप्शन। तो द फ्यूचर इज बाटर ही बाटर है फिर तो। अगर मैं बाटर के कॉन्टेक्स्ट में सूडो बाटर, राइट, स्टैंडर्डाइज बोल सकते हैं, जो वर्चुअल करेंसी है, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी भी है, उसको और थोड़ा बात कर लेते हैं। So it's kind of saying कि एक बार्टर का एक वैल्यू डाला जा रहा है दोनों साइड से, हाँ 100 points, redeem 100 points for this, that 100 points can be seen as $100, 100 rupees, 100 pounds या जो भी है। नीरज, अगर वैल्यू हाँ बोलो सौरभ प्लीज। अगर आप उस करेंसी का वैल्यू बना देंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू रियल करेंसी। मुझे याद है मैंने एक मूवी देखा था, हॉलीवुड मूवी देखा था, इन टाइम में क्या था, टाइम को करेंसी बना दिया उसने। अच्छा। और उसने बता दिया कि बैक टाइमर चल रहा था, सबके हाथ में लिखा हुआ था लेट्स से 1 ईयर, और 1 ईयर का बैक काउंटर चल गया। अब तुम्हें अगर तुमको अपना और 0 होते ही तुम मर जाओगे, तो अब क्या किया, लोग दूसरे का टाइम चुरा रहे हैं, लोग को पेट्रोल भराना है तो अपना टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा 5 सेकंड दे दिया तो 5 लीटर पेट्रोल मिल गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक गेम आई थिंक खेलते हैं बहुत जगह कि लिमिटेड मनी दे दिया $100, अब इससे दिन भर जिंदा रहना है या 2 दिन जिंदा रहना है, या जो जितना दिन जिंदा रह गया हाथ खड़ा नहीं किया उसको और आई डोंट नो $1000 $2000 मिल जाएगा। नीरज हैव सम कमेंट, देन अतुल सर कैन आल्सो प्लीज। नीरज। Yeah, Vishal. So I just want to add, जो अतुल सर ने उस टाइम बोला था ना, ट्रस्ट वाला फैक्टर, जो हम मनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, तो इसमें एक बहुत अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं भूल रहा हूँ चैनल, मैं पिंग करूंगा उसको बाद में। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम कैसे हुआ है पूरा, उसमें बहुत 3-4 वीडियो की सीरीज है। तो मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो ये सारा सिस्टम है ना पैसे वाला, ये सारा ट्रस्ट है, ठीक है। अब ईरान से इंडिया की डील क्या है कि हम आपसे जो ऑयल लेंगे ना, हम यूएसडी में पे नहीं करेंगे, हम रुपीज में पे करेंगे। और ईरान को वो ट्रस्ट है कि ये हमें जो रुपया दे रहे हैं ना, वो बेकार के फालतू का मतलब पेपर नहीं है, या मतलब कुछ भी समझिए, इंडिया की इकोनॉमी में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो ईरान समझता है, और वो पैसा जो है जो इंडिया ने दिया वो खराब नहीं होने वाला है ऐसे, इट कैन बी रीयूज्ड टू बाय समथिंग एल्स, वेदर इट फ्रॉम इंडिया और कहीं से भी, मतलब उसको हम कन्वर्ट करा लेंगे। तो बेसिकली जो सारा सिस्टम है वो ट्रस्ट का है, कि आप अपने सिस्टम में कितना ट्रस्ट जनरेट कर पाते हैं। अतुल सर ने जो बोला ना यूएस का डॉलर में जो अब ऐसा हो गया, सोने जैसा हो गया, तो यूएस ने अपनी इकोनॉमी में वो ट्रस्ट जनरेट किया है विद टाइम, कि लोग इतना मानते हैं कि यूएस तो कभी डूबने वाला नहीं है, तो डॉलर जो है वो हमेशा ही स्ट्रांग रहने वाला है। अगर ये ट्रस्ट हिल जाता है तो पैसा उस दिन कागज हो जाएगा, तो पैसा नहीं रहेगा, वो नोट जो है आपके सामने वो कागज है फिर। तो ये सारा का सारा सिस्टम ट्रस्ट पे। एक मुझे इससे एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है, हरियाणा पंजाब में जो माइग्रेटरी लेबर्स का आना शुरू हुआ, ठीक है, वो 95 के बाद शुरू हुआ ज्यादा, जब वहां का पॉलिटिकल सिस्टम क्रैश कर गया, ठीक है, कुछ स्टेट्स का। तो उससे पहले जमीनें थी, लोग खेती बाड़ी जो करते थे, मेरा बचपन बहुत गांव में बीता है, तो मैंने वो चीजें बहुत क्लोज से देखी हैं। तो लोगों के पास लेबर्स तो होते नहीं थे, अब तो मैक्सिमम जो भी किसान है हरियाणा पंजाब में वो सब घर पे बैठते हैं और लेबर्स ही काम करते हैं खेतों में। तो लोगों को खुद काम करना पड़ता था, और लिमिटेड, परिवार का साइज तो लिमिटेड ही होता था, तो उसमें अब खेती काफी बड़ी होती थी। हरियाणा में तो जैसे गांव की साइड छोटे छोटे परिवारों के पास अच्छे ज्यादा जमीनें होती हैं, तो लोग उसमें बार्टर करते थे।
कि मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारे साथ करवा देता हूँ काम आज, ठीक है, तुम्हारे जो भी धान कटाई करानी है, गेहूं कटाई करानी है, ठीक है, फिर तुम्हारा सारा परिवार लग के फिर हमारा सारा काम करा देगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बार्टर होता था वो इक्विपमेंट्स का होता था। लिमिटेड इक्विपमेंट्स होते थे, पूरे गांव में 2 या 3 ट्रैक्टर होते थे, ठीक है, तो वो सारे वही सब यूज कर रहे हैं, फिर जिसका ट्रैक्टर है उनके खेतों में सब काम कर रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम इस तरह से बहुत मतलब चलता था, लेकिन चीजें चेंज हुई हैं जब से माइग्रेशन स्टार्ट हुई। अब माइग्रेटरी लेबर के साथ आप क्या बार्टर करोगे, आपको पैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसको उस ट्रस्ट को कहीं पे और ले जाके यूज करना है। तो वो आप उसको उसके बदले कुछ नहीं दे सकते, आप उसको वो ट्रस्ट जो इंडियन इकोनॉमी का जो सिस्टम है, वो जो पैसा जो बन के आता है, आपने वो दिया, उसने फिर अपने गांव में जाके अपने बच्चे पालने हैं, अपने घर परिवार के लिए यूज किया। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ट्रस्ट के अराउंड घूमती हैं। और माइग्रेशन और ये जो सारी चीजें, अब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, पहले तो देश के अंदर ही लोग इधर उधर जाते थे, अब ग्लोबलाइजेशन उस लेवल पे हो गया कि लोग बहुत ज्यादा दूसरे देशों में भी जाने लगे, तो पैसे का सर्कुलेशन वहां से ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मैंने खूब आइसक्रीम खाई है गेहूं दे दे के गाँव में। आइसक्रीम वाला आता था, वो गेहूं ही लेता था सिर्फ तो और हरियाणा में तो अभी भी चलता है, वो गांव में कुछ सब्जी बेचने वाला आ गया, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, वो गेहूं ही लेके जाते हैं, अभी भी चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। यस अतुल सर प्लीज। हाँ, तो नीरज ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं उसी को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि फ्यूचर ट्रस्ट के बाद अब आगे क्या होने वाला है कि एक तो डिजिटल करेंसी हो जाएगा, हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, गांव वाले के पास भी और शहर वाले के पास भी सबके पास मोबाइल फोन आ गया है। और जैसे पेटीएम का एग्जांपल दिया अभी, जैसे शर्मा, तो मैंने पेटीएम के जो नंबर 2 राइवल मोबीक्विक के साथ काम भी किया, उनको मैंने हेल्प भी किया है। तो उनके साथ क्या हुआ कि हर आदमी चाहते हैं कि मेरा सिस्टम जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, कहीं भी चले। तो जैसे अभी कैश जो है, जैसे डॉलर का एग्जांपल दिया, या इंडिया के केस में रुपया, पूरे इंडिया में रुपया हर जगह चलेगा, आप तमिल हो या बंगाली हो, डजंट मैटर, बट रुपया सबको पसंद है, सबको पसंद है। ईरान के केस में भी एग्जांपल देता हूँ कि ईरान ने भारत के साथ क्यों वो रुपया लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ईरान के जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी, अमेरिका ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, बैन लगाया हुआ था। तो भारत को का ईरान ऐसा रिलेशन है, बहुत ही प्राउड चीज है कि अमेरिका भी दोस्त है मेरा, और हम पूरे दुनिया को ईरान बेच नहीं सकता, अमेरिका ने दादागिरी की हुई थी, लेकिन भारत ईरान को जो चाहिए था तो वो दे रहा था, और ईरान भी ले रहा था, और आपस का दोनों का बार्टर रिलेशनशिप। और कभी कभी होता है ना कि आप इतने आपने बना लिए अपनी औकात कि जो बड़े भैया जो पुलिसमैन है वो भी देख कर मन करता है कि ठीक है, चलो भारत अब ईरान से आप ही डील कर लेना। तो यूएस को भी ईरान के से हेल्प चाहिए था, और तो उसने इंडिया को यूज किया, चलो इंडिया ईरान संभाल लेगा टैक्स, क्योंकि एनीवे यूएस का ईरान से रिलेशनशिप टूटा हुआ है। तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मनी के टर्म्स में क्या बोलते हैं, एक चीज फंजिबिलिटी, कि मनी कहीं भी आपका वो जो करेंसी है कहीं भी चल जाए, तो फंजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट होके दूसरे करेंसी में या दूसरे गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना कि जैसे गांव का एग्जांपल नीरज दे रहे थे, तो गांव में क्या होता है कि मुझे याद है कि बचपन में भी देखा कि मैंने भी गांव में गया था, या अभी शहर में भी देखता है कि माँ वगैरह या दादी लोग क्या कहती है कि पुराने कपड़े जो है ना वो लोग टाइम टू टाइम सर्कुलेट करना चाहते थे कि चलो डोनेट कर दें, या कभी कभी कोई आते हैं खरीदने वाले, उनको चाहिए पुराना कपड़ा या जो कोई नहीं पहनना चाहता, तो वो कपड़ों को भी दान कर देते थे, बदले में वो लोग कुछ और दे देते थे। तो ये इकोनॉमी तब थी जब ये करंट करेंसीज थी नहीं, रुपया और डॉलर और ये ऑनलाइन नहीं थी। बट अब ये कोरोना टाइम के बाद ये बार्टर इकोनॉमी आ गई। जो पहले भी बोला है कि किसान जो है दूध वाला से दूध ले लेगा, किसान अपना फसल उसको देगा, और जो मीट बनाने वाला है, जो कसाई है, वो उसको मीट बेचेगा। तो सारे लोग बार्टर इकोनॉमी पुराने जमाने में करते थे। आज कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे भी पूरी दुनिया बार्टर पे ही चली। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि क्या होगा कि लोग दूसरे, मैंने एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया था बहुत साल पहले जो कि अभी अप्लाई नहीं करूँगा, कर्मा बैंक या कर्मा करेंसी, कि आपके जो अच्छे काम है ना वही आपकी करेंसी है।
मैंने विशाल को उसके मुसीबत के समय में हेल्प कर दिया। अब मुझे जब जरूरत होगी तो हो सकता है कि मुझे भी जरूरत मिल जाए, और जरूरी नहीं कि विशाल से मिले, किसी और से मिले। तो मेरा वो जो टर्म ये है कि आप अपने हर अच्छे काम से कर्मा डिपॉजिट में आपका बैलेंस बढ़ रहा है, और आपके हर खराब काम से आपका कर्मा डिपॉजिट आपका घट रहा है। तो कोशिश करना चाहिए, मैंने ये कि आप अपना कर्मा डिपॉजिट इतना पॉजिटिव रखो कि आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो आपको योर कर्मा विल टेक केयर ऑफ यू। आपके जो हम लोगों ने पिछले सेशन में बात किया था कि कृष्ण ने जो, या हमारे गीता में कर्म की बात की थी, उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि आज के जमाने में करेंसी में भी कर्मा एज ए करेंसी भी आ जाए कुछ दिन में। और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट मिलते हैं लोगों के, गांव के मजदूर की बात कर रहे हैं किसान, तो वो भी थोड़ा सा कर्मा टाइप का ही करेंसी है कि तुम मेरे लिए इतना घंटा टाइम दोगे तो बदले में हम तुमको खाना दे देंगे या कुछ और दे देंगे। तो वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर कोई वर्चुअल करेंसी आ सकती है तो वो कर्मा करेंसी, इन द सेंस कि आपके कर्म को एक ब्लॉकचेन से भी उसको कंबाइन किया जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके, ताकि अभी क्या है कि कर्मा यूनिवर्सली ट्रांसलेबल नहीं है। मेरा कर्मा का आपके पास क्या वैल्यू और आपके कर्मा का वो एस्टैब्लिश नहीं है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके और हम लोग कर्मा करेंसी को अगर इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है दैट्स द फ्यूचर ऑफ करेंसी इन माय कर्मा पॉइंट्स। यस मिस्टर कर्मा पॉइंट्स। यस यस, काफी अच्छा एग्जांपल था। सो मेरा भी एक जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा होता है कि जब मैं छोटा था तो दिस बर्तन वाले, they used to roam from colony to colony and they will ask for old clothes. So पुराने कपड़े के बदले नए बर्तन देके जाता था आदमी। सो ये मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जो था बार्टर सिस्टम जब मैंने बचपन में मैंने देखा था। am I audible? Yeah. Hello? Yes. Yeah. यस, सो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अपना बार्टर सिस्टम। सो जैसे जैसे मेरा एज थोड़ा बढ़ा, सो आई यूज टू सेल माय ओल्ड बुक्स, और ओल्ड बुक्स के बदले में नए बुक्स लेना, ये मैंने स्टार्ट किया। सो दिस वाज द सेकंड इंस्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम। और मेनली मैंने जैसा हिस्ट्री में भी पढ़ा था, सो यूजुअली दिस सिस्टम फेल्स ओनली बिकॉज जब वी डू नॉट ट्रस्ट, तो ठीक है, ट्रस्ट एक बात सही बोला है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द ट्रस्ट ऑल्सो। जब एक चीज हम किसी और को एक्सचेंज कर रहे हैं, सो द रिसीवर इज नॉट गेटिंग दैट बेनिफिट फ्रॉम दैट डील। तो उस चीज में वो बार्टर सिस्टम, भले ही करेंसी हो या कुछ भी हो, बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है। सो करेंसी सिस्टम वैसे इवॉल्व हुआ था एक्चुअली। So I feel like even currency में भी there is जैसा अतुल सर बोल रहे थे कि dollar they have tried to make it as much close as valuable as gold, but I don't think कि उसमें कोई सक्सेस उनको मिला है अभी तक, या it's not like we can't say exactly that this system is successful. We can't comment on that because bullion gold standard was जो gold standard था उसको खत्म करके US adopted the fiat currency. So fiat currency उन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद में जो गोल्ड के जो रेट्स है, even that is now bullion is also like totally free floating. Earlier जैसे bullion was decided by the UK government, British government decide करती थी कि गोल्ड का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। So even that has been left on the market now. So as such जो सब कुछ है बबल में ही है, मुझे ऐसा लगता है। So even if the currency is there, so cryptocurrency bhi, why the cryptocurrency has evolved so much? Because people don't trust the paper currency. They don't want the paper currency, they want the cryptocurrency. So crypto को start किया गया, but still again then
crypto is also is not totally legal, because the government is facing losses. They are saying the bureaucrats, unke losses ho rahe isse, because people having so huge quantity of cryptocurrency, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता उनको, and no one can know how much value the person is having. and cryptocurrency की वजह से ही मतलब काफी और भी बहुत सारे करेंसीज का भी ऐसा इशू है कि डिवैल्यूएशन हो रहा है या करेंसी का वैल्यू नहीं बचा है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिस्टम, और वही है बस. करेक्ट. Probably there is things are too complex. कहीं ना कहीं हम बेवकूफी बन रहे हैं, या आई डोंट नो, लाइक सारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं इसलिए कोई बेवकूफ नहीं बन रहा है, ऐसा भी कुछ है. यस सौरभ प्लीज. यस. तो मैं दो चीजें बोलूंगा. पहला तो अतुल सर का मुझे वो कर्मा करेंसी सुन के मजा ही आ गया. सो ये जो कर्मा करेंसी है, इसका एक और नाम है मार्केटिंग भाषा में रिव्यूज एंड रेटिंग्स. तो क्या होता है कि ओला ड्राइवर को जब अच्छा रेटिंग मिलता है ना, तो उसको राइड भी ज्यादा मिलता है. सो उसका कर्मा जितना अच्छा होगा, उसको रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलेगा. सो आई कैन कोरिलेट बाय दिस. Second, I'll give you the biggest example of barter, which a lot of people are doing. I'll just name one person, Oyo Rooms. Oyo Rooms क्या करता है? कमल होटल के पास जाता है और बोलता है, भाई तुम मुझे होटल दे दो, मैं तुम्हें अपना प्रोसेस दे दूंगा. फायदा दोनों को हो रहा है. So this is one of the biggest examples. मैं क्लियर देखो का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा था, but any franchisee for that matter. Yeah. We also have a model where नहीं franchisee वाला मॉडल अलग है विशाल. We also have a model where we tie up with the local optical stores. So if मैं कितने 11 लाख के stores खोल सकता हूँ? There is a limitation, right? 11 लाख is a hefty amount. What if मैं फ्री में स्टोर खोल लूं? एक गुप्ता ऑप्टिकल स्टोर को प्रॉब्लम है, उसके पास आज कस्टमर नहीं है, और मुझे एक गुप्ता ऑप्टिकल स्टोर चाहिए. गुप्ता ऑप्टिकल स्टोर को कस्टमर चाहिए. गुप्ता का स्टोर का मैं नाम चेंज करके क्लियर देखो करूंगा, मुझे एक स्टोर मिल गया, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, और गुप्ता को कस्टमर चाहिए, मैं मार्केटिंग करके उसे कस्टमर दे रहा हूँ. सो समथिंग व्हाट Oyo Rooms did. So one of the biggest examples of barter. बट सौरभ, लाइक तुम्हारे केस में अगर तुम ऐसे करोगे, जो 11 लाख दे रहा है वो उसके लिए तो अनफेयर हो जाएगा ना कहीं. किसी को तुमने ऐसी नाम दे दिया वर्सेस किसी से 11 लाख लिए. There is a difference between a 11 lakh का store and directly converted, upgraded. हाँ, obviously converted में investment नहीं लग रहा है versus standardized hotel of Oyo. So the difference is as similar as गांव का स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल. एजुकेशन दोनों में मिल रहा है, चश्मा दोनों में मिल रहा है, पर गांव का स्कूल विल नॉट हैव 100% प्रोसेसेस बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है. इन्वेस्टमेंट लगेगा 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का मैक्सिमम, और उसमें vis-a-vis 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है. तो वहां पे ऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर. यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट स्टोर. मैं बस उसको ब्रांड कर रहा हूँ, प्रोसेसेस पे काम कर रहा हूँ, और कस्टमर को वहां भेज रहा हूँ. मैं एक पॉइंट बोलना चाहता था. सौरभ ने कर्मा पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया, थैंक यू. बट एक क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कर्मा पॉइंट्स रिव्यू और रेटिंग से डिफरेंट इस सेंस में कि रिव्यू आपका उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिजनेस के लिए, वेबसाइट के लिए है. कर्मा पॉइंट सपोज टू बी फंजिबल अक्रॉस, कि आपके कर्मा आपने किसके साथ किया, कहीं भी चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा. इट्स अ रिव्यू एंड रेटिंग बाय गॉड बोल सकते हैं. सर आप राइट है, मैं बस कोरिलेट कर रहा था. हाँ श्योर. जस्ट क्लैरिफाई कर रहा था कॉन्सेप्ट को थोड़ा, क्योंकि मैं एक फाउंडर हूँ कॉन्सेप्ट का, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उसको सही ढंग से. नहीं सर, आप फाउंडर नहीं है, ये तो फाउंडिंग मेंबर तो किताबों में लिखा हुआ है बहुत पहले के. आपने बस उसको क्या बोलते हैं वर्ड्स दे दिया. नहीं, कर्मा को मैंने फाइंड नहीं किया, वो तो गीता में कृष्ण ने बोला कि कर्मा पॉइंट्स के आइडिया को बोला, जो कर्मा करेंसी के आइडिया को मैंने इस पे लिखा भी, कहीं के आर्टिकल में लिखा. सर मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगा. आई विल यूज इट इन माय सेशंस. दिस कैन बी फॉर बोनस आल्सो. कर्मा पॉइंट्स मैं आपको बोल दूंगा कि यू आर द फाउंडर. मैं फाउंडर बोल दूंगा सर.
अतुल जी, इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ रेफरल का एंगल दे रहे हैं क्या? अगर इसकी स्पंजीनेस की बात कर रहे हैं कि अतुल जी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं कल को जाके विशाल को बोल दूंगा कि वो बंदा अच्छा है और उसके उसके कुछ कर्मा पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो आप उसको देखिए आगे। वो एक एंगल हो सकता है, लेकिन वो नहीं। मेरा कहना है ना कि मैं बाहर में अभी मान लीजिए अपने घर से निकलता हूँ और कोई गरीब मुझे दिख रहा है, भूखा दिख रहा है, लगता है कि महीनों से खाया नहीं है, और तो मेरे पास एक रोटी है लेकिन मेरी भूख उतनी तगड़ी भूख नहीं है, तो मैंने अपनी रोटी भी उसको दे दिया, तो वो एक कर्मा पॉइंट है मेरे लिए। और मैं उसके बदले में न उससे रेफरल लेने वाला हूँ, न बदले में उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मेरे डिपॉजिट में हो गया। नहीं, सही बात और है। मुझे इसके लिए मतलब दैट वे आई एम सेइंग कि थोड़ा ज्यादा। सो अतुल सर जो बोल रहे थे, नीरज, जो मैं थोड़ा रिलेट कर देता हूँ कि नीरज जो वो तुमने बोला वो एज अ बाई प्रोडक्ट होगा, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, वो लोग खुद ही बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये अच्छा इंसान है, ये है, वो है, जो भी है। तो बट यहाँ पे क्या हो जाता है, आई थिंक व्हाट आई विल से कि दो तरह के लोग होते हैं, I mean, जो अच्छा काम करते हैं रफली, कि एक जो अच्छा काम करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन 0 होता है, एक जो अच्छा काम करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन लाइक 100 होता है। एंड देन ऑब्वियसली मोस्ट पीपल आर इन द ग्रे एरिया, बिकॉज कोई भी वो दानवीर कर्म नहीं है, और ना ही कोई पूरा लाइक 100% सेल्फिश होता है। सो मोस्ट पीपल लाई समवेयर इन द ग्रे एरिया, लाइक 0 से 100 के बीच वेरी करते हैं। तो मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि अगर मैं लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है, तो what can happen is I do good to one person, and if I need something sometime, that person may not help me, but somebody else will help me. So it's the whole universe versus me, kind of. I do good to the universe does good to me. The representative can always change. Yes sir, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैंने सही बोला या? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विशाल आपने। और ये जो कर्मा बैंक के कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जिसको मैं हेल्प कर रहा हूँ उसको उसी से मुझे हेल्प मिले, इसकी एक्सपेक्टेशन वो जरूरत नहीं चाहिए। एक और जो पॉइंट जो क्लैरिफाई करना चाहता, एक्सपेक्टेशंस वाली चीज, कि एक्सपेक्टेशन भी अगर मेरा है तो उसमें फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है कि उससे किसी और से मिल जाएगा। तो मोमेंट हमको एक्सपेक्टेशन हो गया ना कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुतों को मदद किया, लेकिन मुझे भी मदद मिलना चाहिए जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो जिस दिन ये एक्सपेक्टेशन हो गया उस दिन प्रॉब्लम होने वाला है, हमको डिसअपॉइंटमेंट होगा। और बुद्ध ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उनका पूरा टीचिंग ही यही था कि एक्सपेक्टेशंस ही हमारी या सफरिंग का कॉज है। आपने अच्छा कर दिया, दैट इज इट, दैट इज द रिवॉर्ड। इफ यू गेट समथिंग ग्रेट, इफ यू डोंट गेट समथिंग देन आल्सो फाइन। क्योंकि जिस दिन हमने एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया, जो कि नॉर्मली हम लोग बार्टर में करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि अब ज्यादातर टाइम हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो। करेक्ट, लाइक आई सेड द ग्रे एरिया, राइट? 0 पे पहुंचना भी बहुत हार्ड है, बट वी शुड टेंड टुवर्ड्स दैट। यस नीरज, प्लीज। सर हम बात कर रहे हैं बार्टर की, तो मुझे एक चीज थोड़ी मतलब काफी टाइम से दिमाग में चल रही है। हमारे यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज शुरू हुआ इंडिया में कुछ टाइम पहले, ठीक है? तो जिसमें जो कि फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, दालें हैं, अरहर है, ग्वार, ये सब भी उसमें कमोडिटी मार्केट में आ गए। उससे पहले मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स के जो प्राइसेस थे वो या तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी या फिर कुछ सिस्टम बने हुए थे कि जो बहुत हाई लेवल पे कोई बहुत बड़ी मंडी है वहां पे उसका बोली लग के उसका दाम हो जाता था। लेकिन जब से ये कमोडिटी एक्सचेंज की मार्केट आई है, तो इसमें आपको पता है कि उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ बहुत बड़ा बड़ा कुछ टाइम के लिए खरीद के बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जो इंडिया में स्पेशली फूड ग्रेन्स में के प्राइसेस में जो उछाल आया है या जो ऊपर नीचे होता है, तो उसने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को दिक्कत में डाला है। दालों के रेट स्पेशली कमोडिटी एक्सचेंज में जब से दालें बिकनी शुरू हुई, उसके बाद से दालों के रेट्स में आप देखेंगे तो वो कर्व आपको अलग से समझ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले जो सिस्टम था मतलब काइंड ऑफ बार्टर ही चलता था कि दाल इतने की है, चलो इसकी इतनी पैदा हुई और इसके हिसाब से इसका इतना दाम मिल जाएगा क्योंकि इसके बदले में इतना मिलेगा। लेकिन अब जब से पैसे का खेल शुरू हुआ है तो वो सारा गेम ही बदल गया, क्योंकि उसको कोई पीछे केस हुआ था। हाँ, राजस्थान में कोई कुछ हजारों क्विंटल ग्वार खरीद के बैठ गया कमोडिटी एक्सचेंज पे, और उसका फिर एकदम मार्केट में ऐसा हो गया कि उसका प्राइस कुछ हफ्तों में ही 4-5 गुना हो गया,
और उससे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद जो गरीब किसान है उनको भी बहुत दिक्कतें हुई। तो मैं थोड़ा, अगर उसके बारे में किसी को थोड़ा सा नॉलेज है कि क्या मतलब ये चीजें सही दिशा में जा रही हैं, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स वगैरह जो सारी अटैच हो रही हैं इन चीजों के साथ, कि पुराने वाला सिस्टम ही अच्छा था? आई थिंक मैं इसमें यस सर, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहूंगा, कमोडिटी एक्सचेंज का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन नीरज ने जो कहा कि पुराने जमाने में ये चीजें अच्छे ढंग से होती थी या उनका मिसयूज या मिसमैनेजमेंट नहीं होता, तो मैं इस पे अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जमींदारी सिस्टम जब था पुराना तो उसमें बार्टर ही था कि मैं तुम्हें कुछ जमीन दे रहा हूं या मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, उसके बदले तुम मेरा जमीन जोतो और मैं तुम्हारे को खाना वाना दूंगा, इस टाइप से। तो बहुत ज्यादा मिसयूज होता था, अपने पावर का इस्तेमाल किया जाता था फॉर वेविंग ऑफ देयर लोन या जो भी उनको दिया जाता था। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आज मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट और मिसयूज पहले भी हो रहा था बाय जमींदार्स। एक्चुअली ऐसे इसको बोलेंगे नीरज, मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक सेंटेंस दो सेंटेंस। सो मैं ये बोलूंगा कि जब बार्टर डील चलता था उस वक्त भी फ्लॉज थे, ठीक है, तो वो फ्लॉज को खत्म करने के लिए हमने ये करेंसी निकाला, ये निकाला, वो निकाला। अब क्या हुआ, वो फ्लॉज खत्म हो गए, नए फ्लॉज आ गए। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं कि मेरे जैसे मेरे किसी के पापा है, उनका 2 बच्चा है, राइट। पहला बच्चा का शादी किए, 4 गलती हो गया उनसे। अब वो बोलेंगे नहीं, दूसरा बच्चा का शादी करूंगा तो ये 4 गलती नहीं करूंगा, और वो 4 गलती नहीं करेंगे, लेकिन 4 नई गलतियां करेंगे। तो ये हो गया ऐसा। यस प्लीज सर, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा बस, डेवलपमेंट में बहुत फेजेज आए हैं पिछले 100 साल में। जो हम ये बात करते हैं कि जमींदार और ये सब, ये ऑलमोस्ट मतलब 1960s के बाद, अगर मैं हरियाणवी सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ तो खत्म हो चुका है, क्योंकि जमीन पे एक इंदिरा गांधी के टाइम पे जमाबंदी हुआ है यहाँ पे। उसमें कुछ ऐसा किया गया कि एक आदमी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है, वो शायद पूरे इंडिया में ही लागू हुआ होगा। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो दोबारा से सारा रिवाइव हुआ। तो उससे पहले के सिस्टम की अगर सौरभ बात कर रहे हैं तो आई कैन एग्री टू दैट, लेकिन ये फेजेस की मैं बात करूं तो मैं बीच वाले फेज की बात कर रहा हूं, जो पिछले 30-40 साल का फेज था, जिसमें लैंड्स काफी हद तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अगर किसी ने ज्यादा ही बच्चे पैदा कर दिए तो अलग बात है, उनका फिर काम खराब हुआ है, नहीं तो बहुत हद तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी लैंड्स काइंड ऑफ। और उसके बाद अभी पिछले 5-7-10 साल में ही जो हर चीज को फ्री मार्केट्स के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे हरी ने भी बोला कि पहले गोल्ड के बुलियन स्टैंडर्ड पे चलता था, अब वो भी फ्री फ्लोटिंग हो गया है। ऐसे ही फूड ग्रेन्स भी फ्री फ्लोटिंग हो गए हैं। फूड ग्रेन्स का कहीं ना कहीं फ्री फ्लोटिंग होना मेरे को लगता है कि जो ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट के लिए काफी प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि फूड बेसिक नेसेसिटी है। गोल्ड बेसिक नेसेसिटी था या नहीं था वो अलग से डिस्कशन का टॉपिक है। तो फूड बहुत ही बेसिक है, और फूड अगर फ्री फ्लोटिंग मार्केट्स में अगर इस तरह से ट्रेड होगा, जहाँ पे लोग खरीद के बैठ जाएंगे वर्चुअली उसे, और फिर उसके रेट बढ़ाएंगे और फिर महीने बाद बेचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत वाली बात है, जहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। ये सिर्फ फूड के साथ नहीं होता, हर चीज के साथ ही होता है। स्टॉक मार्केट ही पूरा ऐसे ही चलता है, राइट। किसी ने बहुत सारा खरीद लिया, इन्फ्लेट कर दिया सब चीज, राइट। नहीं तो उस पे बोलना चाहूंगा कि नीरज, फूड जो है, जो एसेंशियल आइटम आया था, तो ज्यादातर गवर्नमेंट्स ने भारत में, क्या आप लोगों ने कभी सुना होगा क्या, राशन की दुकान, तो कुछ चीजों को, जो एसेंशियल आइटम्स को बहुत सालों से ये पॉलिसीज अडॉप्ट की है कि गवर्नमेंट खरीदेगी डायरेक्टली। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या जो भी जो फसल उगाने वाले जो बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं, तो गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली खरीदेगी, एंड देन फिर मिनिमम प्राइसेस भी उसका फिक्स कर देगी, ये आपको प्राइस देंगे मिनिमम इतना ही देना होगा। तो जो गवर्नमेंट के पास तो मोनोपोली पावर भी होती है, तो गवर्नमेंट लोगों से डायरेक्टली ले लेती थी, एंड उसके बाद फिर वो चाहे वो लोगों को देना हो अपने राशन की दुकान से या जिसके थ्रू, वो करती थी। बाद में वो चेंज हो गया कि थोड़ा सा फ्री मार्केट ज्यादा आ गया कि जिसको बेचना है आप बेच सकते हो, लेकिन कुछ एसेंशियल आइटम्स में पहले भी था और आज भी है। बहुत सारे मार्केट्स में गवर्नमेंट, मतलब कि आपको फ्री मार्केट अलाउड ही नहीं है। आपको गवर्नमेंट को
बेचना पड़ेगा और गवर्नमेंट सारे लोगों को फूड अवेलेबल करेगी। जैसे कि राइट टू लाइफ एक राइट है, वैसे राइट टू फूड या राइट टू इस तरह की चीज है, तो फूड भी उस एसेंशियल चीजों में आता है और डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है और इवन इंडिया में भी काफी प्रोग्रेस हुआ है लास्ट कुछ सालों में, 50 साल में, कि फूड भारत में खाने की कमी से कोई नहीं मरता है। प्रॉब्लम कभी कभी होती है केवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कि वही आपने जो बताया था नीरज ने कि कुछ लोग जमाखोर लोग खरीद के रख लेते हैं अपने गोडाउन में और फिर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उसको बेचेंगे। तो उसके अगेंस्ट काफी सारे एक्शंस भी लिए जाते हैं और बहुत ज्यादातर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होता है पब्लिक का कि ये जो जमाखोरों पे एक्शन ले, क्योंकि पता है कि राशन है लेकिन वो सड़ रहा है क्योंकि वो जिन लोगों ने खरीद लिया है अपने अपने गोडाउन्स में, वो लोग उसको स्टोर करके रख रहे हैं क्योंकि मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा या स्कार्सिटी आएगी, सूखा आएगा, तब बढ़ेगा। और एक लास्ट एक पॉलिटिकल पॉइंट बोलता हूँ, 1930s के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, भारत में स्पेशली बंगाल में बहुत फेमस होता है, बंगाल ऐसे लाखों लोगों की जान चली गई भूख से, और इसलिए चली क्योंकि भारत के पास या दुनिया में खाना नहीं था। जो इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल ने बोला कि फूड जो है और फूड जो है ना हमको चाहिए अपने वॉर के लिए, सोल्जर्स को भेजने के लिए, तो इंडिया में वो बंगाल में उनको मरने दो, उनको भूख है, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों लोगों की जान चलेगी बंगाल में, इवन दो देयर वाज एनफ फूड, उनको लगा कि नहीं हमको सोल्जर्स वॉर में इधर उधर जाएंगे तो उनके लिए हमको फूड की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल में पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें एज ए बायर काफी पावर होता है। तो ये जो बार्गेनिंग में गवर्नमेंट इज द बार्गेनिंग पावर, किसी के पास सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट के पास है। एंड अब गवर्नमेंट अच्छी हो तो अच्छे काम के लिए यूज कर सकती है कि लोगों को भूखे रहने से बचाएगी, और गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं कॉलोनियल पावर है तो उसको गलत काम के लिए भी यूज कर सकती है। और कभी कभी और भी एक भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारे तमिलनाडु में ये काम हुआ है, जयललिता हो चाहे गांधी इलेक्शन जीते गए हैं इसी बात के लिए कि फ्री में आपको चावल देंगे, दाल देंगे, तो फ्री का खाना देकर ज्यादातर इलेक्शन इंडिया में जीते जाते थे। अब वो समस्या आई थिंक खत्म हो गई, लोगों के पास अब वो प्रॉब्लम नहीं रही एनीमोर। नहीं सर, अभी अगर मैं करंट टाइम्स की बात करूं तो मैं स्पेशली एग्जांपल दे सकता हूं दिल्ली का। यहाँ पे अभी ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट ही बांट रही है, किट्स बना के बांट रही है फैमिली पर मेंबर, और ये इसके हिसाब से कि अगर एक मेंबर को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और ये सब, और साथ में टूथब्रश और नहाने के साबुन भी दे रही है। तो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अभी भी है इंडिया में, और इस चीज को पॉलिटिकली दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है सर। एमसीडी स्कूल्स में बट रहा है। मेरी वाइफ की ड्यूटी लगती है, वो हर रोज बांट के आती है सुबह जाके। लोग लाइन लगा के कूपन लेके आते हैं इंटरनेट से निकाल के। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अभी भी है और पॉलिटिकली लोग इसका काफी फायदा भी उठा रहे हैं, और मेरे को लगता है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भी एग्जाम्पल हैं कि लोग स्कूलों से सुबह आटा चावल लेके जाते हैं और फिर शाम को जाके पास वाले दुकान पे बेच भी देते हैं। तो हर तरह का है और वो लंबे समय तक चलने वाली चीज है। ये तो आई थिंक मंदिर के बाहर जो गरीब लोग को हम लोग बांटते हैं वो लोग भी यही करता है। तो जमाखोरी पता नहीं ये डीएनए का ही प्रॉब्लम है। कुछ लोग विशाल उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर दुनिया में कोई है वो है गुरुद्वारों का। आप दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे, कभी ज्यादातर जो गुरुद्वारा 24 आवर्स में खुलते हैं, आपको खाना मिल जाएगा। आई विश कि ये मॉडल सब जगह हो, और बहुत जगह पे होता है, जैसे कि जहाँ मैं रहता हूँ पास में सनीवेल के मंदिर में जाता हूँ तो पता है कि सैटरडे को बहुत अच्छा बफे टाइप का खाना मिलेगा और इतना अच्छा होता है कि खाने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो ये गुरुद्वारा मॉडल आई थिंक इज अ गुड मॉडल। जहां भी आप दुनिया में जाओ गुरुद्वारा है तो वहां पे कोई भूखा नहीं मरेगा। भूखा मरेगा इसलिए मरेगा क्योंकि उसको पता नहीं है। गुरुद्वारे में जाओ खाना मिल जाएगा, लंगर चलते रहता है ज्यादातर गुरुद्वारा। करेक्ट, मैंने भी खाया बहुत सारे गुरुद्वारा में। एंड आई थिंक आई एग्री विद अतुल सर, यूजुअली वहाँ जितने वैरायटी मिलते हैं कभी कभी अपने घर में नहीं बनते हैं उतना, इसलिए भी जाते हैं बहुत लोग। तो बट आई थिंक इट्स अ गुड है जो फ्री बट रहा है, बढ़ता है ये जो
आई थिंक जैसे गुरुद्वारा का एग्जांपल दिया अतुल सर ने, या कुछ मंदिर, आई थिंक इस्कॉन है दिल्ली में, इस्कॉन में भी चल रहा था ये, मैंने देखा था। जो आई थिंक सबसे अच्छा डोनेशन वही उन जगहों पे ही हो सकता है जो ऑलरेडी दानवीर कर्म बने हुए हैं बहुत अरसों से। ऐसा नहीं कोविड के टाइम दानवीर कर्म बन गया अचानक से, बिकॉज दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रस्ट। जैसे हम ट्रस्ट की बात की कि नहीं ये लोग को दोगे तो ये भूखा लोग को खिलाते हैं, हमें और कुछ मिसयूज नहीं करेंगे। ये चलिए, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम एनीवन? आई थिंक ये क्रिप्टो करेंसी पे कभी एक अलग से एक डिस्कशन करते हैं। आई थिंक ये बड़ा टॉपिक है समझने के लिए और समझाने के लिए भी। ठीक है, चलिए आज के लिए आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टाइम। सो गुड नाइट एवरीवन, विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू, बाय। गुड नाइट।